بہت سارے ہندو جو ہے اپنا یہ وطن چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور ان کی آنکھوں سے جو اشک بہتے نظر آ رہے تھے۔ پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کی تعداد تقریباً 23% کچھ تھی اور اب وہ ریڈیوس ہو کے جو ہے تقریباً اوورآل 4% مذہبی اقلیتیں جو ہیں ان کی اوورآل پاپولیشن ہے پورے جنرل پاپولیشن کے حساب سے۔ اب چاہے بات مذہبی تبدیل کی ہو یا اور مذہبی اقلیتوں کے جو حقوق ہیں ان کے پامالی کی ہو، تو اس طرح کے رویے، اس طرح کے معاملات میں سمجھتی ہوں اس کو یقیناً بدلنا چاہیے اور ایک پرامن فضا قائم ہونی چاہیے جس میں ہر انسان سکون سے رہے۔ ڈیمانڈ ہے کہ بھئی کم از کم اس بات کا بھی تعین ہونا چاہیے کہ وہ بچہ یا بچی جو اپنا مذہب تبدیل کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے یا نہیں، لیکن اس کی کوئی سرٹن ایج ہو، یعنی کہ 18 سال سے کم عمر کا کوئی بھی انسان جو ہے وہ کسی چیز کے لیے ایلیجیبل نہیں ہو۔ ہمارے جو تہوار منائے جاتے ہیں جیسے کہ دیوالی، ہولی، اس پہ چھٹی ملنا نہ ملنا وہ بڑا مسئلہ ہے۔ اسکول کے بچوں کو جو ہے دیوالی، ہولی پہ اگر ایگزامس ہیں تو وہ ان تہواروں پہ بھی ان بچوں کو اپیئر ہونا ہے۔ بہت سارے ٹیچر خواتین سے بھی میری بات ہوئی، 2-4 بیوٹیشین سے بھی بات ہوئی کہ وہاں جب وہ اپنے روزے رکھتی ہیں یا انہیں جلدی چھٹی چاہیے ہوتی ہے، ہاف ڈے چاہیے ہوتا ہے یا چھٹی چاہیے ہوتی ہے، تو انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ کے ہاں تو آئے دن جو ہے روزے ہیں، آئے دن کبھی تہوار ہے، کبھی کیا آپ اپنا مذہب کیوں نہیں چینج کر لیتے؟ اسکول میں بھی جب لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ بھائی ان کا مذہب چینج ہے تو لوگ ہمیں درس دینا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کیوں جو ہے اپنا مذہب چینج نہیں کر لیتے؟ تم ایک لڑکی ہو، تم پڑھ نہیں سکتی، تم باہر نہیں جا سکتی، تم فیصلہ سازی میں حصہ نہیں لے سکتی، تم اپنی رائے نہیں دے سکتی۔ ہمیں یہ سکھایا جاتا تھا گھر میں کہ آپ کو بولنا نہیں ہے، کوئی اگر آپ کو کچھ کہہ دے تو خاموشی اختیار کرنی ہے، عورتیں بیچ میں نہیں بولتی، کوئی بات نہیں کرتی۔ ایک عورت گھر سے نکل کر اپنے کام تک جاتی ہے تو راستے سے لے کر بس، گاڑی، ٹرانسپورٹ، جتنے مرد حضرات بیٹھے ہوتے ہیں ان سب کی نظریں جو ہے نا وہ آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا کے ہی آتی۔ ایون آپ راستے میں چلتے ہیں، آپ کو بائک والے جو ہے آفر کرتے ہیں کہ آئیں لفٹ دے دیتے ہیں، آپ کو گاڑی والے جو ہے کہتے ہیں آئیں لفٹ دے دیتے ہیں۔ ایون اب تو رکشے والے بھی یہ کرتے ہیں کہ کہاں جانا ہے، نہیں جانا تو چلے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ السلام علیکم، نمستے جی، میرا نام سیما مہیشوری ہے اور میں ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہوں۔ مائنورٹیز کے حوالے سے اور خواتین کے حوالے سے میں نے بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ بینگ ہندو کمیونٹی کی ریپریزنٹیٹیو کے طور پہ میں نے مختلف فورم پہ جو ہے ریپریزنٹ بھی کیا ہے اور اس کے علاوہ مجھے بہت زیادہ ایکسپوجر ملا پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی، اور بہت سارے پلیٹ فارمز پہ کانفرنس، ورکشاپس بھی اٹینڈ کیے اور یہ ایک بہت ہی بہترین اٹ سیلف کام تھا۔ اس کے علاوہ میں نے اویئرنیس کے حوالے سے، ریسرچ اور ٹریننگز کے حوالے سے بھی بہت زیادہ کام کیا۔ میرا تعلق جو ہے ایک پور کمیونٹی سے ہے، ہندو کمیونٹی سے۔ میرے ماں باپ جو ہے ایک مزدور طبقے سے تعلق رکھتے تھے، میرے والد بھی، ایون میری والدہ محترمہ بھی ایک مزدور خاتون رہی ہیں اور یہ ان کی محبت تھی کہ میں اپنی تعلیم مکمل کر پائی، کیونکہ ہمارے ہاں اس ملک کے اندر خواتین کے ساتھ جو ہے تعلیم کے معیار کو لے کر یا تعلیم حاصل کرنے کی جب بات آتی ہے تو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے، بہت سارے مسئلے مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ اور جیسے کہ میرا تعلق لیاری سے ہے، پھر ہندو کمیونٹی سے ہے، تو ہمارے یہاں یہ کنسیڈر کیا جاتا تھا جس دور میں میں اپنی بات کر رہی ہوں وہاں پہ کہ لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے، ان کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، انہیں تو چولہا سنبھالنا ہے، چادر اور چار دیواری کا جو کانسیپٹ ہوتا تھا، یہ تصور جو اتفاقاً میرے اپنے خاندان میں بھی اور میری اپنی فیملی میں بھی موجود تھا۔ میرے چاچا، میرے خاندان کے لوگ اپنی بیٹیوں کو نہیں پڑھاتے تھے، لیکن چونکہ میری ماں ایک مزدور خاتون تھی اور وہ اپنے کام کے دوران جس طریقے سے محنت مشقت کرتی تھی اور انہیں جس طرح کی ہراسمنٹ اور بدمزگی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، تو ان کی ایک خواہش ہوتی تھی اور وہ ہم بہنوں کو اکثر یہ کہتی تھی کہ میں چاہتی ہوں میری بیٹیاں جو ہیں وہ تعلیم حاصل کریں، پڑھیں۔
और अगर बड़ी होकर इनकी शादी भी हो जाती है और इनको अगर इस तरीके से इकोनॉमिकली फाइनेंशियली अगर इशू आते हैं, तो कम से कम मेरी बेटियां जो हैं वो बाहर दर दर ना भटकें, ख्वार ना हो, मेहनत मजदूरी में ना पड़ें। अगर वो पढ़ी लिखी हुई होंगी तो वो ट्यूशन पढ़ा लेंगी, स्कूल पढ़ा लेंगी और इज़्ज़त से जो है अपने आप को फाइनेंशियली जो है स्ट्रॉन्ग कर लेंगी और शादी के बाद अपने घर को भी सपोर्ट कर पाएंगी। तो बस ये मेरी वालदा का एक जुमला था जो मेरे जहन में घर कर गया और मैंने बस ठान ली कि नहीं, मुझे तालीम हासिल करनी है। और मैट्रिक के दौरान इत्तफाकन बस मेरे वालिद साहब की जो है डेथ हो गई। और मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है कि मेरे फादर का तीसरा दिन था और मेरे चाचा ने मेरी मदर से कहा कि इसने कॉलेज में कैसे एडमिशन ले लिया, हमारे यहाँ तो लड़कियाँ नहीं पढ़ा करती, तो ये कैसे जो है कॉलेज जाएगी, कल से ये कॉलेज नहीं जाएगी। तो मेरे साथ भी ये मामलात रहे, बिल्कुल रहे। और इवन मेरे अपने ही फैमिली, इवन मेरे भाई भी नहीं चाहते थे कि उन्हें भी लगता था शादी करनी है, चूल्हा जलाना है, घर संभालना है, तो क्या करना है इनको पढ़कर। लेकिन मेरी मदर की मदद से और उनके सपोर्ट की वजह से, अल्लाह के करम से, कि आज मैं इस काबिल बनी कि आज मैं यहाँ बैठी हुई हूँ और आप सबसे मुखातिब और बात कर रही हूँ। हकीकत ये है कि एक औरत को डिस्क्रिमिनेशन का सामना सबसे पहले उसके अपने ही घर से शुरुआत होती है, जब उसे ये एहसास दिलाया जाता है कि तुम एक लड़की हो, तुम पढ़ नहीं सकती, तुम बाहर नहीं जा सकती, तुम फैसला साजी में हिस्सा नहीं ले सकती, तुम अपनी राय नहीं दे सकती। तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस होते हैं। और ख़ास करके हमारी जैसी लड़कियां जिसका ताल्लुक़ एक गरीब घराने से हो, लियारी से हो, आपको पता है कि लियारी के भी जो मामलात रहे हैं वो बड़े पसमानगी का शिकार रहे हैं। फिर हिंदू कम्युनिटी से हो, हमें ये सिखाया जाता था घर में कि आपको बोलना नहीं है, कोई अगर आपको कुछ कह दे तो खामोशी इख्तियार करनी है, औरतें बीच में नहीं बोलती, कोई बात नहीं करती। और यकीन माने मैंने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि ऐसे ही है। मैं टीचिंग करती थी और मुझ में शायद इतना ज़्यादा एतमाद नहीं था, क्योंकि जब लोग बातें करते थे, ख़ास करके अगर मतलब मेरा मज़हब डिफरेंट था, तो मज़हब के हवाले से कोई बात है तो मुझे बिल्कुल भी बात नहीं करनी। औरतों के हुकूक क्या होते हैं इससे बिल्कुल ना आशना थी। लेकिन रफ्ता रफ्ता जब एक रास्ता बनता गया और मैं डेवलपमेंट सेक्टर में आई, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि आपका औरत होना कोई गुनाह नहीं है, आपको भी तमाम इख्तियारात हैं, वो सारे हुकूक हासिल हैं जो सब लोगों को हैं। घर से निकलती है तो पहले घर के अंदर चैलेंजेस, घर से बाहर निकलती है तो ख़ानदान कम्युनिटीज़ वालों की सोचें, उसका भी जो कहते हैं ना कि मान रखना, उसका भी जो एक बोझ होता है वो उसके कंधों पे होता है। बाहर एक औरत घर से निकलकर अपने काम तक जाती है तो रास्ते से लेकर बस, गाड़ी, ट्रांसपोर्ट, जितने मर्द हज़रात बैठे होते हैं उन सब की नज़रें जो है ना वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा के ही आती। वो किसी को शिकायत नहीं कर पाती, क्योंकि सबसे पहला डर उसको ये होता है कि अगर मैं अपने घर में बताऊंगी तो घर वाले तो वैसे ही खिलाफ हैं कि मैं बाहर जाऊं, जॉब करूं, काम करूं, तो आपको इस बात की इजाज़त नहीं है कि आप बाहर काम करें। तो खामोशी से उस हरासमेंट को बर्दाश्त करती है। फिर आप काम की जगह पे, क्योंकि आपका जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, आपको तनख्वाहें जो हैं वो मर्दों के हिसाब से कम दी जाती हैं। वहाँ जब प्रमोशन की बात आती है तो वहाँ बैठे हुए आपके मेल कोलिग्स ये कहते हैं कि भाई लड़की है ना, इस वजह से इसको प्रमोशन दिया जा रहा है। यानी कि ये बात लोग समझते हैं कि औरतों के अंदर कोई सलाहियत है ही। इवन आप रास्ते में चलते हैं, आपको बाइक वाले जो है ऑफ़र करते हैं कि आएँ लिफ्ट दे देते हैं, आपको गाड़ी वाले जो है कहते हैं आएँ लिफ्ट दे देते हैं। इवन अब तो रिक्शे वाले भी ये करते हैं कि कहाँ जाना है, नहीं जाना तो चले मैं छोड़ देता हूँ। मतलब दीज आर वेरी कॉमन जेस्चर्स कि एक खातून, एक लड़की को किस हद तक एक मेंटल टॉर्चर किया जाता है, किस हद तक वो हरासा होती है और किन मुश्किलात से गुजर कर जो है वो अपने घर को संभालती है, अपने घर के बच्चों को संभालती है। अगर वो शादीशुदा है तो बच्चों के साथ अपने ससुराल उनको लुक आफ्टर करती है। फिर वो रास्ते में जो हरासमेंट होती है उसको बर्दाश्त करती है। फिर जब वो जॉब पे जाती है वहाँ पे उसे किस तरह के चैलेंजेस और मुश्किलात का सामना है वो उसको फेस करती है। और फिर जब वो शाम को थक हार कर आती है तो फिर वो एक 24 आवर्स एक जो है
खामोश मजदूर की तरह अपने काम पे दोबारा लग जाती है और दोबारा सारे घर को सर्व करती है। यानी कि सुबह नाश्ते देने से लेकर रात के डिनर और रात के सोने तक उसकी जो है ना कोई छुट्टी होती है, ना उसका कोई सैटरडे होता है, ना संडे, बल्कि छुट्टी वाले दिन औरतों के काम में और इजाफा हो जाता है क्योंकि बच्चे घर पर हैं, हस्बैंड घर पे हैं, फैमिली घर पे, दोपहर का खाना बनाना है, शाम का खाना बनाना है, सुबह का खाना बनाना है, फिर उसके साथ साथ बच्चों को जो चाहिए कपड़े भी धोने हैं, सफाई भी करनी है और हर घर का बंदा जो है वो उससे आवाज़ लगा रहा होता है, ये कर दो, वो कर दो, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। औरत होने के साथ साथ उसके साथ हरासमेंट तो होती ही है, लेकिन अगर उसका मज़हब चेंज है, अगर वो हिंदू है, क्रिश्चियन है, सिख है या किसी दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखती है, तो उस लेवल पे भी जो है हमसे मतलब कहीं ना कहीं तज़ाद किया जाता है, तफर्रुक किया जाता है। इवन स्कूल से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक, कि स्कूल में भी जब लोगों को ये एहसास होता है कि भाई इनका मज़हब चेंज है, तो लोग हमें दर्स देना शुरू कर देते हैं कि आप क्यों जो है अपना मज़हब चेंज नहीं कर लेते। ये मज़हब जो आपकी आइडेंटिटी है, ये भी आपके जेंडर आइडेंटिटी की तरह जो है कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क होती है। मैं अपनी या अपनी जैसी ख़वातीन की बात करूं कि अगर उनका हमारा ताल्लुक़ अगर दीगर मज़ाहिब से है तो, और वो ख़वातीन अगर वर्किंग ख़वातीन हैं, तो हमारे जो त्यौहार मनाए जाते हैं जैसे कि दिवाली, होली, उस पे छुट्टी मिलना ना मिलना वो बड़ा मसला है। स्कूल के बच्चों को जो है दिवाली, होली पे अगर एग्ज़ाम्स हैं तो वो उन त्योहारों पे भी उन बच्चों को अपीयर होना है। बहुत सारी टीचर ख़वातीन से भी मेरी बात हुई, 2-4 ब्यूटिशन से भी बात हुई कि वहाँ जब वो अपने रोज़े रखती हैं या उन्हें जल्दी छुट्टी चाहिए होती है, हाफ डे चाहिए होता है या छुट्टी चाहिए होती है, तो उन्हें ये कहा जाता है कि भाई आपके यहाँ तो आए दिन जो है रोज़े हैं, आए दिन कभी त्यौहार है, कभी क्या आप अपना मज़हब क्यों नहीं चेंज कर लेती कि रोज़ रोज़ के इन मसलों से जो है आपकी जान छूट। इस मुल्क के कवानीन सबके लिए बराबर हैं और इस मुल्क का कानून भी सबको अपने मज़ाहिब के हिसाब से उसकी प्रैक्टिस करने की इजाज़त देता है। लेकिन ये जो चंद एक शरपसंद अनासर हैं और ये जो चंद एक रवैये हैं जिनको सोचने की ज़रूरत है और तब्दील होने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे साथ ऐसे भी लोग बैठे हैं जो हमें रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि मैं एक अलग मज़हब से ताल्लुक़ रखती हूँ। तो कहीं पे अगर हम देखें मनफ़ी असरात हैं, मनफ़ी रिएक्शंस हैं, तो वहाँ पे जो है मस्बत पहलू भी नज़र आते हैं। कहीं पे मेरी पहचान जो है वो मुझे आगे तक ले जाती है, तो कहीं ना कहीं मेरी पहचान जो है मुझे कहीं ना कहीं डाउन करना शुरू कर देती है। मुझे ऐसा लगता था कि आई वांट टू डू समथिंग, और तकरीबन इंटर कर चुकी थी, टीचिंग कर रही थी। मेरी बहन और बहनोई एक जगह रहते हैं, वो एक धर्मशाला की जगह कहलाती है। वहाँ पे एक हादसा हुआ और उस हादसे को रिज़ॉल्व करने के लिए उन्होंने एक NGO से रब्ता किया, ह्यूमन राइट्स के इदारे से रब्ता किया, और उस इदारे ने हमें बहुत सपोर्ट किया उस मसले को हल करने के लिए। तो वहाँ से मेरी कनेक्टिविटी जुड़ी और फिर मेरे जहन में आता था कि मैं भी कुछ इस तरह के काम कर सकती हूँ जिसमें मैं अपनी कम्युनिटी का सपोर्ट कर सकूँ, इंसानों को सपोर्ट कर सकूं और अपने माशरे के लिए कुछ कर सकूं। फिर मैंने इन्हीं NGOs के पास जाके कुछ वर्कशॉप्स, कुछ कॉन्फ्रेंस, उनके प्रोग्राम्स अटेंड करती थी, और वहाँ से चलते चलते मुझे एहसास हुआ कि ये वो जगह है जहाँ मैं शायद अपने इस सोच या इस जज्बे को आगे बढ़ा सकती हूँ। और ये वो रास्ता था जहाँ से सफ़र करते हुए मैंने डेवलपमेंट सेक्टर को ज्वाइन किया एज आ ह्यूमन राइट्स के तौर पे। आज मैं एज आ ह्यूमन राइट्स डिफेंडर के तौर पे आज मैं काम कर रही हूँ। मैं 8-10 साल पहले की बात करूं और आज की बात करूं तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। आज की अक़लियतें, आज की औरतें जो हैं वो अपने हुकूक़ के लिए बात भी कर रही हैं। 11 अगस्त को पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान माइनॉरिटी डे जो नेशनल लेवल पे डिक्लेयर हो चुका है, वो मनाया गया बड़े जज्बे के साथ, जिसमें मज़हबी अक़लियतों ने अपने सेलिब्रेशन के साथ साथ जो उनके कंसर्न्स हैं, मसले हैं और जो डिमांड्स हैं उसका भी जो उन्होंने वहाँ पे तज़किरा किया, बातचीत की। तो अब जो मज़हबी अक़लियतों के हवाले से देखें, इवन कि अब
होली पे जो है पूरे सिंध में छुट्टी मनाई जाती है, दिवाली के हवाले से छुट्टी मनाई जाती है। और ना सिर्फ कि मज़हबी अक़लियतें ये त्यौहार मना रही हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा लाइक माइंडेड लोग हैं, ख़ास करके सिविल सोसाइटी के लोग या डेवलपमेंट सेक्टर्स या और भी हमारे जो दोस्त, साथी, फैमिलीज़, पड़ोसी, वो हमारे साथ मिलजुल कर जो इन त्योहारों में शामिल भी होते हैं। तो किसी हद तक ये तो एक मतलब अगर हम देखें कि किसी हद तक जो है अब ये मामला तो हुआ कि पहले लोग बात भी नहीं कर सकते थे, लेकिन अब लोग बात कर रहे हैं, इन मसलों पे तज़किरा हो रहा है। और ना सिर्फ मज़हबी अक़लियतों के लोग, बल्कि हमारे मेजॉरिटी के लोग भी हमें सपोर्ट करते हैं, साथ देते हैं। लेकिन अगर हम एक्सट्रीमिज़म की बात करें, वॉयलेंस की बात करें, तो मुझे लगता है इसमें शायद वक्त के साथ साथ कहीं और इजाफ़ा हो रहा है, या फिर सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हाईलाइट हो रही हैं जो शायद पहले हाईलाइट नहीं होती थी। क्योंकि जब पाकिस्तान इक़्तिदा में आया था तो उस वक्त जो है तकरीबन पाकिस्तान में मज़हबी अक़लियतों की तादाद तकरीबन 23% कुछ थी, और अब वो रिड्यूस होके जो है तकरीबन ओवरऑल 4% मज़हबी अक़लियतें जो हैं उनकी ओवरऑल पॉपुलेशन है पूरे जनरल पॉपुलेशन के हिसाब से। तो इससे भी पता चल रहा है कि इसमें कितना फ़र्क है, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो माइग्रेट कर गई हैं, बहुत सारे हिंदू क्रिश्चियन जो है यहाँ से चले गए हैं। उसकी शायद वजूहात ही यही है कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को महफूज नहीं समझती। लेकिन नो डाउट हमें सपोर्ट करने वाले भी यहीं के लोग हैं, और कहीं ना कहीं ये जो तासुब क्रिएट करते हैं, ये जो शरपसंद अनासिर हैं, वो भी यहीं पर हैं, और वो इस तरह के मामलात क्रिएट कर देते हैं कि अक़लियतें जो हैं कहीं ना कहीं अपना दर्द, अपने जज्बात को लेकर वो फिर मंजर आम पे आती हैं। कभी प्रोटेस्ट करती हुई, तो कभी अदालतों के दरवाजे नॉक करते हुए, तो कभी जो है बाहर इंसाफ के लिए या मुख्तलिफ इदारों के तरफ अपना रुझान करते हुए कि कहीं उनको सपोर्ट मिले। तो नो डाउट ये मामलात हैं, क्योंकि बात हमेशा उन्हीं मामलात पे, उन्हीं बातों पे की जाती हैं जहाँ पे कोई ना कोई मसले मौजूद हैं। तो ये आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। हिंदू जो है सदियों से यहाँ आबाद है। अगर सिंध धरती जिसे आज हम हिंदू कहते हैं, वो कभी सिंधु कहलाता था और उसका ताल्लुक़ इस सिंध धरती से है। लेकिन आज बहुत सारे हिंदू जो है अपना ये वतन छोड़कर चले गए हैं, और उनकी आँखों से जो अश्क बहते नज़र आ रहे थे। जो भी यहाँ से जाता हुआ नज़र आए, क्योंकि उसे अपनी धरती से बहुत मोहब्बत थी और वो इसे छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन जब बात आती है उनके घरों पे, उनकी घर की इज़्ज़त पे, यानी कि यहाँ पे सिंध के अंदर, पाकिस्तान में भी हो रहा है, लेकिन ख़ास करके अगर हम सिंध की बात करें तो यहाँ पे हिंदू बच्चों की जो अबडक्शन हो रही है, उनको अगवा करना, उनकी कन्वर्शन करना, फिर उनकी जबरी मज़हब तब्दीली के साथ साथ उनकी जबरी शादियाँ भी हो रही हैं। और जबकि अगर हम देखें तो उन कम उम्र बच्चियों जिनकी उम्र होगी 12 साल, 13 साल, 14 साल से लेकर 30-35 साल की ख़वातीन तक जो हैं वो मज़हब तब्दील हो जाता है उनका, और फिर वेरी नेक्स्ट डे जो है उनकी किसी से शादी हो जाती है। तो ये जो रवैया है, ये जो मामलात है, क्योंकि हम अक्सर ये इस बात की डिमांड करते हैं। अभी भी जो हमारा माइनॉरिटी डे था उसमें हमने इस बात की भी डिमांड की थी कि ये मज़हब तब्दील होना ठीक है, हर इंसान की अपनी चॉइस है, हर किसी को हक़ है कि वो किस मज़हब में रहना चाहता है, वो अपना मज़हब छोड़ना चाहता है, उसे तब्दील करना चाहता है। लेकिन एक बच्चा जिसकी उम्र 12, 13, 14 साल है, जिसको खुद को ही नहीं पता कि उसका अपना मज़हब क्या है, तो वो दूसरे मज़हब को कैसे कंपेयर करता है। तो हमारी ये डिमांड ज़रूर रही है कि इस मसले के हल के लिए भी बच्चों की उम्र का तयन होना चाहिए। इवन कि सिंध के अंदर जो है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रिक्ट एक्ट 2013 का मौजूद है, जिसमें 18 साल से कम उम्र लड़के लड़की की शादी नहीं हो सकती, और अगर वो होती है तो वो कानूनी जुर्म है। लेकिन जब मज़हब तब्दीली की बात आती है तो तब ये छोटी उम्र की बच्चियों की शादी भी होती है, मज़हब भी तब्दील होता है। तो हमारी एक डिमांड है कि भाई कम से कम इस बात का भी तयन होना चाहिए
کہ وہ بچہ یا بچی جو اپنا مذہب تبدیل کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے یا نہیں، تو یہ تو بعد میں اس کا تعین ہوگا، لیکن اس کی کوئی سرٹن ایج ہو، یعنی کہ 18 سال سے کم عمر کا کوئی بھی انسان جو ہے وہ کسی چیز کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے، اس کا CNIC کارڈ نہیں بن سکتا، اس کو سم ایشو نہیں ہو سکتی، اس کے بہت سارے معاملات ہیں، اس کا بینک میں اکاؤنٹ نہیں کھل سکتا، اور بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ لیکن جب مذہب کی بات آتی ہے جو کہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ڈیسیشن ہوتا ہے، تو اس میں ہم ایسے چھوٹے بچوں کے فیصلوں کو کس طریقے سے مان سکتے ہیں؟ تو یہ وہ رویہ رہا ہے جہاں پہ ماں باپ نے اپنے آپ کو انسیکیور محسوس کیا، اور وہ اپنی سیکیورٹی، اپنی بچیوں کی سیکیورٹی اور اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے انہیں شاید ایک ہی راستہ نظر آیا کہ وہ یہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں۔ تو میرے خیال سے ہمیں اس بات پہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم اس ملک کا حصہ ہیں، یہ ملک ہمارا اپنا ہے، اور اگر ہم یہ ملک چھوڑنا چاہتے تو شاید کب کے جا چکے ہوتے۔ ہماری کہتے ہیں نا کہ جڑیں یہاں سے جڑی ہوئی ہیں، اور ہم یہاں سے شاید جانا نہیں چاہتے، لیکن جب مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہر کوئی اپنا دفاع پہلے دیکھتا ہے۔ تو یہ وہ معاملات ہیں جہاں سے لوگ کچھ سوچنے کے لیے مجبور ہیں۔ تو اب چاہے بات مذہبی تبدیل کی ہو یا اور مذہبی اقلیتوں کے جو حقوق ہیں ان کے پامالی کی ہو، تو اس طرح کے رویے، اس طرح کے معاملات میں سمجھتی ہوں اس کو یقیناً بدلنا چاہیے، اور ایک پرامن فضا قائم ہونی چاہیے جس میں ہر انسان سکون سے رہے، اور وہ اپنی زندگی کا، اپنے رہن سہن کا، اپنے مذہب کا، اپنی ثقافت کا تعین خود کر سکے۔ اس ملک کے تمام شہریوں کو وہ حق اور اختیار دیتی ہے، اور نہ صرف ان تمام شہریوں کو بلکہ جو خاص ہمارے مذہبی اقلیتیں ہیں ان کو بھی حق اور اختیار دیتی ہے۔ ان کے بہتری کے لیے بھی قوانین موجود ہیں، لیکن اس پہ لائے عمل یا اس کی امپلیمنٹیشن اتنی پراپرلی نہیں ہوتی، اور خاص کر کے جو میں نے ذکر کیا فورس کنورژن کے حوالے سے، تو میرے خیال سے اس پہ بھی ہمیں قانون بنانے کی ضرورت ہے اس کی روک تھام کے لیے، کیونکہ اگر اس طرح کے لاز پالیسیز موجود ہوں گے، قوانین موجود ہوں گے، تو وہ شر پسند عناصر جو اپنے آپ کو کسی اور پردے میں یا اپنی خطاؤں، اپنی غلطیوں کو چھپانا چاہتے ہیں اور اس کو کوئی اور شکل و صورت دے دیتے ہیں، تو اس سے بچا جا سکتا ہے۔ اور میرے خیال سے ہم اس ملک کے شہری ہیں تو یہ ہمارا حق بھی بنتا ہے کہ اس طرح کے لائے عمل، اس طرح کے قوانین بنائے جائیں جو اس ملک میں رہنے والی اقلیتوں کو محفوظ کر سکے، اور جو قوانین موجود ہیں، بے شک یہاں بہت سارے قوانین موجود بھی ہیں، اس کی پراپر طریقے سے امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے تاکہ ہر انسان کو، ہر شہری کو ایک تحفظ مہیا ہو سکے اور وہ پرسکون طریقے سے اپنی زندگی گزار سکے۔